آئی ہیں صرف آپ، دیکھو صرف میں نے 1 گھنٹے کی دیری سے. اینجل میں نے آپ کی جگہ مطلب سنبھال کے رکھی تب تک. صرف 1 گھنٹے کی دیری سے آئی ہیں آپ، زیادہ نہیں. ہاں تھینک یو سو مچ. آپ کیونکہ کھانا کھانے لگ گئے تھے اسی لیے کھانا نہیں کھائے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں صرف 1 گھنٹے کی دیری سے آئی ہیں، زیادہ نہیں. میں لوگوں کو بتا دیا تھا، میں کہا کوئی بات نہیں، ایکس مسلم اینجل جی جو ہے نا وہ میک اپ شیک اپ کر رہی ہوں گی، لیڈیز عموماً لیٹ ہوتی ہیں. نہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے، مطلب بس کھانا کھا رہے تھے اسی لیے. تو ایکس مسلم اینجل جی کا چینل لوگوں نے کافی شیئر کر دیا ہے. میں سب لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ایکس مسلم اینجل جی کے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اب جو ہے لوگ کہیں گے یار یہ تو کھانا پہلے کھاتی ہیں تو ان کو تو ہم کیا جا کے دیکھیں ہیں. میں صبح 5 بجے سے اٹھی ہوئی ہوں، اسکول گئی ہوں، کام پہ گئی ہوں، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. فاسٹنگ چل رہا ہے کیا؟ نہیں نہیں، صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے نا. ارے ایسے بول لو بات. نہیں جی، اینجل جی کا چینل میں نے پھر شیئر کیا ہے، یہ میں نے پھر شیئر کیا ہے ایکس مسلم اینجل جی کا چینل. پلیز لوگ سبسکرائب کریں ڈھیر سارا. اور ایکس مسلم اینجل جی واپس جڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ. ایکس مسلم اینجل جی ہمارے ساتھ دھار دھار قسم کے مومن آئے، ان کا نام ہے شیخ سہیل. وہ کہہ رہے ہیں جوکر ہو تم سب. جوکر؟ جی جی میں نے اس لیے کہا جی میں نے اس لیے کہا کہ میں نے کچھ اور بھی سنا ہے، جیسے آزاد وہ کہہ رہا ہے یار کبوتر باز نہیں چاہیے. آزاد کون کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، کیا آئی ڈونٹ کہہ رہے کیئر ہو اس بھائی. کا؟ آپ بات کیجیے نا بھائی، آپ بات کیجیے نا، آپ کیا کہہ میرے رہے چینل پہ میری بات کریں گے آپ، کسی اور کی نہیں کریں گے. یہ کون سا ساحل آ گیا؟ 2 ساحل کیسے آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ کوئی ایک نمبر ہے، 2 نمبر ہے، کیا چکر ہو رہا ہے؟ 2 نمبر؟ ارے 1 نمبر ہے بھائی. تو اوپر والا کون ہے؟ تو 2 نمبر اوپر میں تو اوپر کون بیٹھا ہے؟ اس کو نکال رہا ہوں. اچھا اس کو نکال دو. میں کہا یہ کیا ہو گیا یار، میں کہا یہ کیا ہو گیا بھائی. تم کو ہاں یہ کہہ رہے کہ کون سا مطلب کہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ، تو ہم کہاں کہہ رہے کہ کہیں نہیں ہوتا ہے. نوک جھوک ہر پریوار میں، ہر ریلیجن میں، ہر رشتہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی بشرطے کوئی دھرم ایسا آپ بتا دیجئے جہاں بشرطے یہ قرآن میں اتارا گیا ہو عزت کے ساتھ کہ عورتوں کو مارو. یہ آپ خالی مجھے بتا دیجیے. مجھے پتا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تھوڑی نوک جھوک ہوتی ہے، یہ نارمل بات ہے. لیکن باضابطے اس کو قرآن پہ اتارا گیا ہو، یہ کہاں ہے؟ کس اور آپ کہیں دیکھے ہیں کیا ایسا؟ مارو بولیے. مارو کا لفظ بول رہے ہیں نا آپ؟ مارو کے آگے تفسیر آپ نے پڑھے پڑھے ہیں کہ کس طرح مارے اپنا شوہر اپنی بیوی کو؟ کس طرح مارے؟ کس طرح اتنا مارو کہ خون نہ نکلے اور ہڈی نہ ٹوٹے، باقی اس کو کچمبر بنا دو. اتنا مارو نہ نکلے رڈی نہ ٹوٹے، چلو میں چہرے پر نہ ایسا مارے. کروں، اگر اسی طریقے سے تمہیں مارا جائے ٹھیک ہے، میں تمہارے ٹٹوں کے اوپر ٹانگ پھیروں کمال کر کے، نہ خون نکلے گا نہ ہڈی ٹوٹے گی. ارے میرے بھائی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہلکی مار. یہ کس تو نے آپ کہا کے ہلکی ذہن میں مار؟ ہوگا نا اتنا. قرآن نے کیوں نہیں کہا ہلکی مار؟ ارے دماغ آپ کا تو ہے نا، آپ کے پاس تھوڑا بہت، آپ بھائی خود سوچئے. جب قرآن نے سامنے کہا کہ والا ہلکی مار. ایک آیت ایڈم بھائی، ایک آیت تو ہم لوگ کے لیے بھی پھولوں سے مارنے یہ کے لیے بتائیے لڑکوں کے لیے بھی اتارنا مجھے یہ چاہیے تھا بتائیے نا پھر کہ قرآن مرد نے یہ کو بھی آپ کہا کہ پھولوں سے کچمبر مار بنا دو. سکتے ہیں. نہیں وہ کچمبر پھولوں بنا سے دو یہ کہا قرآن نے نہیں. کہا پھر. مجھے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک آیت ہم لوگوں کے لیے بھی اتارتے کہ آپ بس پھولوں کی اتاری ہے پنکھڑیوں سے مارے، اتاری زیادہ نہیں، پھولوں کی پنکھڑیوں سے مارے. پھر وہ ایسا آیت اتاری کیوں ہے. نہیں اتارے؟ یہ دیکھیں مردوں کے لیے اتاری ہے نا. اگر عورتوں کو ڈر لگے اپنے مردوں سے تو وہ کیا کریں گی؟ دیکھو عورتوں کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کی، بے رخی کا، تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں کیا، صلح صفائی کر لیں. بھائی عورت کیوں نہیں ٹانگ مارے اسی طریقے جس طرح مرد مارتا ہے؟ سیم لفظ ہے نا. عربی کا لفظ دونوں جگہ پہ سیم ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. خافت اور خافت، یہ قرآن سورہ کون سی ہے؟ سورہ آف وومن چیپٹر نمبر 4، سیم سورہ وومن 128ویں آیت میں عورتوں کو کہا گیا ہے تمہیں اپنے شوہر سے بے زیادتی اور بے رخی کا ہو تو کوئی صلح صفائی کر لو. لیکن اگر مرد کو ہو تو 34 آ جاتی ہے. مارے تھا تخافون، ٹھیک ہے، ان کو مارو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو مارو. کتنا مارو؟ آرام سے مارو، لکھا ہوا یہاں پہ آرام سے مارو.
तो ये भी क्या लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं, मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का, जैसे वो मैं बहन कह कचुम्बर रही थी बनाना भी ना। बता देता हूँ, मैं कचुम्बर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। आपने ये कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दे, फिर हम्म मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों कचुम्बर आता ना बनाए भाई। या ना ओ आए, भाई ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल की हम्म है? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा नहीं अल्लाह जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, वो आपको फूलों से मारो, ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ जब से छुपा रहा है, अल्लाह छुपा आपको रहा है। कैसा ये देखें, मैं बताता कुरान हूँ की आपको, आयत ये के आपने कहा है बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना होगा ना। भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनत हम्म अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती हैं? दो बीवियां, ठीक है। दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है। और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब दे दबादब दे दबादब दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी। बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ है दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर। जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर। हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा तफसीर में जाओ, तफसीर में चले गए। जी एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको ये देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं नहीं, वही इनको दिखाना आप है ना, वही तो इनको दिखाना है। आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, किन से बोल रहे हैं आप? तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए क्यों? किन से रहे हैं? कि बेटा सबर कर, मेरा एक दिन क्वेश्चन निकल है, अभी जाएंगे। अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामन जी ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी दो बीवियां हो ना हो, उसकी सास ले दीवार ले, कुंडे से दो बांध लेगा किसी ना, से भी बालों से बांध दे कुंडे से उसकी बांध बात, लेगा। तो आपको कैसा फील होगा? क्या की आप तफसीर है भाई, आप कौन सी किताब में? नहीं, आप बेटी की दे किताब रहे का हो, तफसीरुल नाम? कुर्तुबी, आपके इधर बेटी तफसीरुल होगी तो भी कुर्तुबी। आप अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। एक मिनट, एक मिनट, 2 तफसीर मिनट, 6 कुर्तुबी। मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तुबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूंगा कि लिखी हुई है। अबे सामने स्क्रीन में तफसीर कुर्तुबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीरुल कुर्तुबी, कुर्तुबी आओ कुर्तुबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, मेरे खिलाफ तो लोग वीडियो बनाने वाले इतने ढेर सारे हैं। अच्छा मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ? आपके तो शायद पता नहीं, साहिल भाई को पता होगा, हमारे इंडिया में ना जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, उसकी हड्डी ना टूटे, दाग वाग नहीं आए, दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटा देते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, सब पुट्ठा लटका के पटाख पटाख चित्रों में मारते हैं। उस पर से जिस पे लिखा होता है आजा बाल में तेरा इंतजार था। सच बोल पट्टा, सच बोल पट्टा। वही वही वही, मतलब मुझे लगता है जिसने ना इंडियन हमारी वो
पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से मारो नजर ना आए। अब ये सोहेल भाई, शेख सुहेल है, खुद जोकर हो गए, हमें जो चैट में आगे जोकर जोकर बोल रहे थे। नहीं अच्छे भाई है सोहेल भाई यार कब तक इस नहीं गलाजत भाई, में मैं रहोगे आपको यार? जोकर नहीं कह रहा हूँ, जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कभी। मुझे नहीं वो परवाह कौन क्या ठीक है, कह रहा वो तो हाँ, शेख सोहेल वो कह वो रहा है, ठीक। मैंने सुनो इसलिए सुनो लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस शेख तरह सोहेल चल भाई, रहा है। शेख अरे सोहेल भाई, शेख जोकर सोहेल भाई, जोकर शेख सोहेल जब भाई, खुद वो आपका सब आदमी ठीक कह रहा है। है तो हम भी शेख सोहेल भाई वो सब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकते, लेकिन ये ना हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, ये मेंटेलिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटेलिटी भाई? वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों भाई को उनको पीटो, नसीहत करो, औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो, दे रहा है सबसे पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ नहीं तो पीटो, नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ कैसी? कि जख्म ना उभरे। और चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, तलवे पे दो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ नहीं तलवे मारेंगे से चेहरे मारेंगे पे। ना, डंडे डंडे से तलवे खूबसूरती पे खराब हो मारेंगे। जाएगी। नहीं अगर मैं ये उसके आप कहाँ पूप्स तक के ऊपर सही मारूं हदीस के है? अंदर और भी ये टांगों के लिखा है बीच में ना, मारूं, हदीस सुहेल में ये क्या सुहेल लिखा है कि डंडे से सुहेल मारो। सुहेल 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 अद्रुब हुन्ना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब अद्रुब होता है वो होता ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनीहाउ किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली अच्छा, मैं फाला अगर फाला मैं फाला लड़की फाला। की, यार अगर मैं लड़की मेरा के, एक और क्वेश्चन था, इनसे चले गए? नहीं मैंने बैक स्टेज किया क्योंकि वो बोलने नहीं देंगे। अगर ठीक है। लड़की की मैं टांगों के बीच में मारूं डंडे, या टांग मारूं, टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पांवों के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पर लटा कर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके है बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की जी। जी सुहेल साहब, ऑल ओके है ना? एडम भाई, ये सबसे ऊपर की लाइन में जी, सब ऊपर, सब ठीक है ना? सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा, ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे दो नंबरी ना करें। जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे पता है भाई। आप लोग जहां मर्जी जाके खुद पढ़ ले रोंदी, मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा सुहेल भाई, ये जो इसने इसी हदीस में जी, जो लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत हदीस दें, या जो भी लिखा है, ये मतलब हदीस है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने, कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें, फिर ये बिस्तर अलग कुरान में करें। भी है। फिर एडम भाई, ये क्या नहीं, हदीस है क्या? ये आपने जो बयान की मेरे मेरा पास, क्वेश्चन सुनिए, फिर नहीं है, फिर मेरा नहीं है, क्वेश्चन, एक्स मसलमा एंजल जी, फिर नहीं है, और है, अलिफ और फिर का वर्ड यूज नहीं करें जी सॉरी चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें। पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने वो खुद दिमाग नहीं अरे दिया है, यार, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी का। था आपका ऐसा होता। तुमको ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? वो क्यों मर्द करेगा होता है इसलिए मर्द क्यों वो होता औरत है? का क्यों मर्द होता कौन है। होता है? नहीं, क्या एक्स्ट्रा क्या लगा उसको है कोई मर्द? का पराया औरत मर्द थोड़ी नहीं, आके नसीहत करेगा, मर्द का औरत उसको नहीं पराया होता। मर्द थोड़ी आकर अल्लाह, नसीहत करेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द करेगा, गार्बेज बनाया हुआ है, मतलब गजब बना के लॉजिक बस है। फेंक दिया इधर। पराया जब हमें मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता, भाई क्यों नहीं कर सकता, माँ क्यों पराया नहीं कर मर्द कह रहा हूँ मैं, सकता? पराया कह बाप रहा हूँ पराया मेरे होता है, भाई। बाप पराया होता है। अरे यार, आप समझे नहीं, मैं नहीं मैंने समझा, नहीं पराया का मैं लफ्ज समझ रहा हूँ इस्तेमाल भाई, किया। मैं समझ रहा हूँ, तुम जिस एंगल से बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है अच्छा, बाप पराया मर्द होता है, अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई, तो फिर बाप पराया क्यों करते बोले हो? तो गैर बाप महरम समझा ना। भाई, बाप समझा देगा ना,
खामंद पे क्या इतनी चुल है? अरे मगर ये अरे मेरे भाई ये शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी जो सामने वो शोहर समझाएगा ना, भाई फिर मैं नहीं जब मानता उनकी शोहर बात मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, निकाह का जो लफ्ज होता है ना, जी जी बिल्कुल, मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना कलमा जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोमिन कौन है? अल्लाह रसूल, मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की प्रॉपर्टीज अच्छा, फिर बताओ, बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ इस नहीं आप कुरान के बताइए। मुताबिक। जो खुशू से नहीं नमाज मैं पढ़े, उतनी तरफ जो खुशू से जी नमाज पढ़े, जो अच्छा जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद में जा जी नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे, जी जो ज़कात दे, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है। और जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है। ऐसा कोई मत ये मोमिन होता है, ये मोमिन, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है वो अल्लाह। मुस्लिम कुरान में की अल्लाह, नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएंगे ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर ये मुसलमान, तो कोई बात या ही नहीं, सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है मुस्लिम मार सकता नहीं। ये आप पहले ये बात कीजिए, ये सिर्फ नसीहत करे। मुसलमान मार सकता नहीं है आप या पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करे ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले यहाँ जान पे लेते ना फिर आप नहीं चीज को। है, तो फिर नहीं है इसमें, 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं है, आपकी अलिफ नजर बाव में में नहीं है। है, फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, कुरान ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हैं। इनकी बदखोई, बस इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और ख्वाबगों में और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ, तीनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अक्ल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने तेरी बेटी के साथ शादी बराबर की, उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मुझे मैंने बेटी नहीं उसको है, 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको मैं 4 तेरे से चंडे भी उम्र लगाई, मैंने उसको मैं डांटा छोटा भी, हूँ तेरे से और उम्र में। मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सेपरेट कर सकते हो दिया। कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं क्योंकि तुम तुम्हारी अहले बहन के किताब की साथ, हो? तुम्हारी बहन के साथ, मुझे तुम्हारी बहनें बहन भी के साथ नहीं है, मैंने शादी की अकेला थी, एकलौता है, बहन के साथ अकेला कहाँ एकलौता शादी है की थी? वो, चल कोई बात नहीं, तेरी एकलौता माँ है के साथ वो, शादी कर ली थी जिसकी वजह वो से तू पैदा हुआ शादीशुदा था, है, तो मैंने शादीशुदा कर है ली वो। थी ना, तलाक दिलवा के कर ली थी अरे मोहम्मद की तरह। भाई क्या फालतू की यार, बात है। अभी इससे खत्म हो पहले भी गया, तो आप अभी इनको एग्जाम्पल दिए थे ना बेटी का। खत्म हो अभी गया, इससे खत्म हो पहले गया, एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जाम्पल बेटी का, तो इनको जब दे रहे तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप, बोलिए सिस्टर जी, एक्सप्रेस में एंजल जी, बोलिए प्लीज। हाँ, अभी वो आपको यही एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस फट गया, निकल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी वाट लग जाती है। हाँ, बस सीधी सी कराओ बात जी, कर ही नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है एक्सप्रेस में एंजल जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ, बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा। और इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, हाँ, बाकी वो पंखड़ियों हम से, अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है।
ہائے 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 مارنا ہی کیوں پنکھڑی ہے؟ کیوں مارنا ہی کیوں ہے یار؟ کیوں مارنا؟ پنکھڑی وہی مدعا تو سائیکو یہی ہے کہ یہ لوگ، مارنا ہی کیوں مطلب ہے، اللہ یہ سائیکو ہے مارنے کا یار۔ لفظ کیوں آیا، باقی مجھے ہاں کوئی وہی کیا وہی کس سے تو بات مارنا ہے، یہ کیوں مار بات رہے ہی ہیں؟ بات ہے۔ ہاں یہ مارنا کیوں ہے یہ مجھے بتائیے، کیوں اللہ ہو کر یہ ایسی باتیں کیوں وہ نوٹ کروائے؟ یہ دیکھیں بہادیپ جی کہہ رہے ہیں شیخ سہیل سرکار کی تیری بیوی یہ سٹریم نہ دیکھ رہی ہو ورنہ چلی جائے گی۔ بھائی اس کی بیوی نے چلائی، اس کی بیوی نہیں جا سکتی، وہ مسلمان ہوگی پروبیبلی، اب وہ اس کی مجبوری ہے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی۔